Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe, healthy, and happy. For today, I have planned that we'll be covering section number 185 and section number 186 of the Companies Act 2013. I'll be using the Institute study material as before, and the study materials PDF which I'm gonna use today is available in the description box below. Okay, so you can download that, and also I've mentioned the link of the playlist in which the other sections which have already been covered and are going to be covered will be mentioned. So you can also follow that link if you want to see some other videos also of this chapter and the other chapters which we have covered till date. Okay, so let's start with chapter 3. And chapter 3 में we have section 185 186. Section 185 is about loans to directors, and section 186 is about loan and investment by the company. See, when we are reading section 185, it is a specific section where we are giving loan to the directors, and that provisions which govern this when we are giving loans to the directors are mentioned in section 185. But when we say a company is giving loans or making any investments, then we'll have to refer section 186. So wherever the word director is written with respect to loan, that we have given loan to the director, we have to apply section 185. But in all the other cases, that means other than director, we'll be referring to section 186. So 185 is a specific section and 186 is a generic section. Okay, so let's start with section number 185. You can open up page number 3.44 of the module if you have the hard copy of the module, or otherwise the notes which I've linked up in the description box below. Okay, so let's start with section number 185 first. Section 185 of the Act contains the provisions which impose restrictions लोन्स. सो सेक्शन 185 किस चीज़ से रिलेटेड है? सेक्शन 185 के अंदर प्रोविजंस दिए हुए हैं जो कि हमारे जो भी लोन्स हैं, जो हम डायरेक्टर्स को लोन देने वाले हैं या फिर जो भी डायरेक्टर से रिलेटेड पर्सन्स होंगे, जिसका अभी मेंशन आएगा कि कौन कौन से पर्सन्स हैं और भी जो इस सेक्शन के अंदर कवर हो रहे हैं, तो उन लोगों को या डायरेक्टर्स को अगर हम लोन देते हैं तो उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस कौन से सेक्शन के अंदर दी हुई है? ये सेक्शन 5 के अंदर दी हुई है. Okay, so first subsection is imposition of restrictions. So section 185 subsection 1 is about imposition of restrictions. A company is not permitted directly. Abhi ke liye leave the bracket portion, just read the other portions. A company directly or indirectly to advance any loan, including any loan represented by a book debt, or to give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by any director of the company or of a company which is a holding company, or any partner or relative of any such director. So फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, या फिर और any firm in which such director or relative is a partner. Now what does this mean? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले लिखा हुआ है कि अ कंपनी परमिटेड नहीं है, चाहे फिर वो डायरेक्टली दे रही हो लोन, चाहे फिर वो इनडायरेक्टली लोन दे रही हो. अब डायरेक्टली दे रही है तो लोन हो गया. अगर हमने कोई भी गारंटी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है किसी लोन के रिस्पेक्ट में जो इन पर्सनस ने लिया है जो कि नीचे मेंशन्ड हैं, तो वो माना जाएगा कि सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 के दायरे में आ गए हैं, उसमें कवर हो जाएंगे. ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ लोन नहीं है. अगर कोई लोन है जिसके रिस्पेक्ट में गारंटी दी है या फिर सिक्योरिटी दी है, तो किसी भी लोन के सपोर्ट में, फेवर में गारंटी सिक्योरिटी भी दी है, तो वो भी आपका इसी सेक्शन में कवर हो जाएगा. सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर करते हैं. ठीक है, तो अब बात आती है कि लोन किसने लिया है. ठीक है, लोन किसने लिया है, और या तो हमने वो लोन ही उस बंदे को दे दिया डायरेक्टली, या फिर हमने उस बंदे ने जो लोन लिया था, जिस बंदे ने लोन लिया था, हमने उसके बिहाफ पे गारंटी सिक्योरिटी दी है. ठीक है, तो वैसे कौन से पर्सन्स हैं? तो पर्सन्स है, पहला
जिस भी कंपनी के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो उस कंपनी का डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर, या फिर उसी कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है एक्सक्यूज़ मी, उसी कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है उस होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, या फिर कोई भी पार्टनर है, रिलेटिव है इन डायरेक्टर्स का। सो बेसिकली जो भी कंपनी के रिस्पेक्ट में आप प्रोविजंस देख रहे हो सेक्शन 185 के, उस कंपनी का कोई डायरेक्टर है जिसने लोन लिया है या तो कंपनी से ही या फिर रिस्पेक्ट में उसके बिहाफ पर गारंटी, या फिर कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है उसका डायरेक्टर है, उस कंपनी का डायरेक्टर है एंड उस कंपनी के डायरेक्टर को आपने लोन दिया है या फिर उसके बिहाफ पे गारंटी सिक्योरिटी दी है, या फिर कोई भी इन डायरेक्टर्स का, या तो कंपनी का डायरेक्टर या फिर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर का पार्टनर या फिर रिलेटिव है, तो वो भी इस सेक्शन में कवर हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, लोन टेकन बाय any firm in which any such director or relative is a partner। अब बोला है कि लोन डायरेक्टली डायरेक्टर या फिर उसके रिलेटिव पार्टनर ने नहीं लिया है, बल्कि जिस भी फर्म का वो पार्टनर है, ठीक है, जिस भी फर्म का वो पार्टनर है, कौन, डायरेक्टर या रिलेटिव, जिस भी फर्म का पार्टनर है उस फर्म ने लोन गारंटी सिक्योरिटी ली है, ठीक है। तो या तो वो इंडिविजुअली डायरेक्टली कवर हो रहे थे या फिर जिस भी फॉर्म में वो पर्सन, कौन, डायरेक्टर या फिर रिलेटिव क्या है, पार्टनर है, तो उस केस में वो फॉर्म भी इस सेक्शन के दायरे में आ जाएगी, इस सेक्शन के प्रोविजंस उस पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अच्छा, अब हमने एक लाइन मिस करी थी, हमने वो ब्रैकेट वाला पोर्शन मिस किया था। ब्रैकेट वाले पोर्शन में क्या लिखा है, अ कंपनी सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशंस स्टेटेड इन द बॉक्स गिवन लेटर। सो लेट्स रीड द बॉक्स फर्स्ट कि एग्जेम्पशन किसको दी हुई है। तो ये आ गया हमारा एग्जेम्पशन का बॉक्स। एग्जेम्पशन का बॉक्स इज गिवन ऑन पेज 3.46। ओके, सो व्हाट आर द एग्जेम्पशंस गिवन, मतलब ये वाली जो एग्जेम्पशंस हैं, ये वाली जो कंपनीज़ होंगी, एंटिटीज़ होंगी, उन पर ये वाला प्रोविज़न नहीं लगेगा, ठीक है, या लगेगा तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन दिया होगा। तो लेट्स रीड इट एंड अंडरस्टैंड टुगेदर। ओके, सो एग्जेम्पशंस में क्या दिया है, सेक्शन 185 शैल नॉट अप्लाई to a government company in case such company obtains approval of the ministry or department of the central government which is administratively in charge of the company, or as the case may be the state government, before making any loan or giving any guarantee or providing any security under the section। So basically यहाँ पर बोला है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उस गवर्नमेंट कंपनी पर सेक्शन 185 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा, तब नहीं होगा जब इस गवर्नमेंट कंपनी ने मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है, उससे अप्रूवल लिया है, ठीक है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो कौन सा वाला मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है जो एक्टिवली इस चीज़ का इंचार्ज है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इस चीज़ का इंचार्ज है, उस वाली मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपने क्या ऑब्टेन किया है, अप्रूवल ऑब्टेन किया है। आप कौन हो, एक गवर्नमेंट कंपनी हो, तो आपने अप्रूवल ले लिया है, ठीक है, या फिर आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया है। ऐसा कोई लोन देने से पहले, कोई गारंटी सिक्योरिटी देने से पहले आपने कोई भी पहले ही अप्रूवल ले लिया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर सेक्शन 185 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। आप कौन हो, गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, अब एज़ यूजुअल हमें पता है हमारी एक फ़ेवरेट लाइन है, हमारी क्या सेक्शन की फ़ेवरेट लाइन है कि जब भी कोई एग्जेम्पशन दे रहे होते हैं तो सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का कंप्लायंस हुआ होना चाहिए। तो यहाँ भी यही लिखा है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी ने सेक्शन 137 या 92 का कंप्लायंस किया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर तो आपके ऊपर एग्जेम्पशंस अप्लाई हो जाएंगी। मतलब यू वोंट बी मतलब आपको नहीं अप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 185। मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, आई एम सॉरी, बट आपको सेक्शन 185 अट्रैक्ट नहीं करेगा इन केस यू हैव कंप्लाइड विद दिस सेक्शन एंड यू हैव टेकन द अप्रूवल, ठीक है। नेक्स्ट
सेक्शन 185 शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 185 अप्लाई नहीं होगा किसी भी प्राइवेट कंपनी पर। कौन सी प्राइवेट कंपनी पर? प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ कंडीशन दिया हुआ है। मतलब गवर्नमेंट कंपनी के केस में वैसे कंडीशन नहीं थी, सिर्फ प्रायर अप्रूवल की बात करी थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ कंडीशन दी हुई हैं कि अगर वो ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल कोई भी अदर बॉडी कॉरपोरेट नहीं होल्ड करता है, मतलब जिसकी शेयर कैपिटल में किसी भी अदर बॉडी कॉरपोरेट ने पैसा नहीं लगाया हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, ठीक है, तो उस केस में वो वाली प्राइवेट कंपनी पर सेक्शन 5 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? इफ़ द बोरोइंग्स ऑफ सच अ कंपनी फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी बॉडी कॉरपोरेट इज़ लेस दैन twice of its paid up share capital or 50 crore rupees whichever is lower। तो सबसे पहले लिखा है कि आप क्या करो, आपकी जो भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है इसका ट्वाइस करो, उसको कंपेयर करो 50 करोड़ रुपीज़ के साथ, ठीक है। ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल को कंपेयर करो 50 करोड़ रुपीज़ के साथ, इसमें से जो भी लेस आता है उसको सिलेक्ट करो। फिर देखो क्या आपने जो बोरोइंग्स कर रखी हैं कहाँ से, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी भी बॉडी कॉरपोरेट से, अगर वो इस अमाउंट से कम की है तो ठीक है, आपके ऊपर सेक्शन 185 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बोरोइंग्स कर रखी हैं एक्सीडिंग द अमाउंट, कौन सा अमाउंट? ईदर ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज़ लेस। तो इसके लोअर वाले से आपने बोरोइंग्स ज़्यादा कर रखी हैं तो आप पर सेक्शन 185 अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। Third condition, such company has no default in repayment of such borrowings subsisting at the time of making transactions under this section। अब आपने जो भी borrowings कर रखी हैं उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप ये वाली ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब सेक्शन 185 वाली ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उस टाइम पर कोई भी आपकी बोरोइंग्स में रीपेमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। कौन सी बोरोइंग्स में? वो बोरोइंग्स में जो आपने बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर अदर बॉडी कॉर्पोरेट से लिया हुआ है, ठीक है। तो जिस टाइम आप लोन्स दे रहे हो डायरेक्टर्स को, उस टाइम पर ये डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये सोचो ना, आपने बैंक्स का पैसा नहीं दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा नहीं दिया या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट का पैसा नहीं दिया, लेकिन आप क्या करो, डायरेक्टर्स या उसके रिलेटिव को लोन देने में लगे हुए हो, तो ये ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट राइट। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 185 तभी नहीं अप्लाई होगा, कब? जब उसकी शेयर कैपिटल में कोई भी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ। दूसरी कंडीशन, जो उसकी बोरोइंग्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या फिर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट से, वो ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज़ लोअर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इस कंपनी ने जिस टाइम पर ये लोन दे रही है टू द डायरेक्टर्स, गारंटी सिक्योरिटी दे रही है टू द डायरेक्टर्स और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर या फिर फर्म, तो उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में आपका उस टाइम पर जब आप लोन दे रहे हो, गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो, उस टाइम पर देयर शुड नॉट बी एनी रीपेमेंट डिफ़ॉल्ट ऑफ सच बोरोइंग्स, राइट। तो इस पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, ये कंडीशंस तो हैं, ठीक है, लेकिन सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का भी कंप्लायंस हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड एग्जेम्पशन किसको दे रखी है? सेक्शन 185 शैल नॉट अप्लाई टू द निधीज प्रोवाइडेड the loan is given to a director or his relative in their capacity as members and such transaction is disclosed in the annual accounts by a note. However, while complying with such exception, the nidhis shall ensure that the interests of their shareholders are protected। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 185 निधीस पर अप्लाई कब नहीं होगा? तब नहीं होगा जब लोन जो दिया जा रहा है वो किसी भी डायरेक्टर या रिलेटिव को दिया जा रहा है। किस कैपेसिटी में दिया जा रहा है? मेंबर्स की कैपेसिटी में दिया जा रहा है, और इस ट्रांजैक्शन का किया गया है इन द एनुअल अकाउंट्स बाय अ नोट।
ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन को कंप्लाई करते वक्त निधिस को क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जेम्पशन वाला पार्ट, जिसमें हमने 3 एग्जेम्पशंस पढ़ी। पहली एग्जेम्पशन पढ़ी टू द गवर्नमेंट कंपनी, सेकेंड पढ़ी टू अ प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड टू द निधिस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एग्जेम्पशंस और याद भी हो गई होंगी, बहुत ईजी सी एग्जेम्पशंस थी। अब आ जाते हैं वापस पेज नंबर 3.44 पर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सब सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ लिया एग्जेम्पशंस हैं 3। उसके अलावा जो भी कंपनीज़ हैं उन्होंने अगर किसी भी कंपनी के डायरेक्टर या फिर कंपनी की होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर या फिर इन दोनों ही टाइप के डायरेक्टर्स के रिलेटिव या पार्टनर को क्या दिया है, लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया है, या फिर किसी भी फर्म को दिया है जहाँ पर ये डायरेक्टर या फिर रिलेटिव क्या है, पार्टनर, तो उस केस में सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 लग जाएगा। तो इसमें बोला है कि ना ही आप लोन दे सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट टू। मतलब जैसे आपने बुक्स में देखा होगा आपकी आर्टिकलशिप के टाइम पर कि कई बार हमने लेजर में एंट्री देखी होती है ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर्स, मतलब ये पैसा हमें डायरेक्टर्स से लेना है, तो इस टाइप की बुक डेट एंट्रीज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन फ्रॉम दी रिस्ट्रिक्शंस। अब पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई, फिर कुछ रिलैक्सेशन दे दी सबसेक्शन 2 में। सब्जेक्ट टू दी स्पेसिफाइड कंडीशंस अ कंपनी इज परमिटेड टू एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट, या फिर गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन by any person in whom any of the director of the company is interested। अब बात आती है ये जो वर्ड लिखा हुआ है एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज़ इंटरेस्टेड, इसका मतलब क्या है, सेक्शन 184 वाला नहीं। इसका मीनिंग डिफाइंड है पेज नंबर 3.45 पर थ्रू एन एक्सप्लेनेशन। लेट्स रीड इट साइमल्टेनियसली। 3.45 एक्सप्लेनेशन। The expression any person in whom any of the director of the company is interested means any private company of which any such director is a director or member। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है जिसमें कोई भी डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर है उस प्राइवेट कंपनी में या फिर मेंबर है। हमारी कंपनी का डायरेक्टर क्या है, दूसरी प्राइवेट कंपनी में क्या है, डायरेक्टर या फिर मेंबर है, ठीक है, या फिर कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है एट द जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस दैन 25% ऑफ द वोटिंग पावर may be exercised or controlled by any such director or by 2 or more of such directors together। so ऐसी कोई बॉडी कॉरपोरेट है जिसकी जनरल मीटिंग में अगर वोटिंग हो तो उस वोटिंग में एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर इस डायरेक्टर के पास इंडिविजुअली है या फिर कुछ और डायरेक्टर्स इसी के जैसे डायरेक्टर्स को मिला जुलाकर 25% तक बन रही है एटलीस्ट। एंड तीसरा दिया हुआ है एनी बॉडी कॉरपोरेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर whereof is accustomed to act in accordance with the directions or instructions of the board or any of the director or directors of the lending company। जो कंपनी लोन दे रही है, जो कंपनी लोन दे रही है वो कंपनी किसी ऐसी बॉडी कॉरपोरेट को लोन दे रही है जिस बॉडी कॉरपोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर क्या हैं, जो भी काम करते हैं वो एज़ पर दी डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड काम करते हैं या फिर एज़ पर दी डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डायरेक्टर और डायरेक्टर्स काम करते हैं किसी भी लेंडिंग कंपनी के, ठीक है। तो उस केस में भी माना जाएगा वो क्या है, एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज़ इंटरेस्टेड। सो उस केस में रेस्ट्रिक्शन दे दी कि आप दे सकते हो लोन्स गारंटी सिक्योरिटी किसी भी पर्सन को इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज़ इंटरेस्टेड। नाउ आ जाते हैं वापस, द स्पेसिफाइड कंडीशंस टू बी फॉलोड आर। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज़ पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। देखो पहले में लिखा था कि आपको अलाउड नहीं है देना, दूसरे में कुछ रिलैक्सेशन दी कि आप इनको दे सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस डाल दी। क्या कंडीशंस डाल दी कि अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज़ पास्ड
बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है हमें इस चीज़ के लिए। हाउएवर द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस फॉर द रेलेवेंट जनरल मीटिंग शैल डिस्क्लोज। अब आपको पता ही होगा जो भी जनरल मीटिंग होगी उसके लिए नोटिस जाएगा, नोटिस के अंदर एक पोर्शन होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का, राइट। तो उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर आपको कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी है जिसके बारे में हमें नीचे बताया हुआ है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग के अंदर इफ़ यू वांट टू गिव द लोन्स, ठीक है। अब बात आती है क्या करना पड़ेगा। नोटिस जाएगा, नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द लोन्स गिवन, गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, क्या लोन दिया है, किसको दिया है, कितने का दिया है, सब कुछ ये डिटेल जाएगी। अब ये जो लोन दिया है इस लोन का पर्पस क्या है, इस गारंटी सिक्योरिटी का पर्पस क्या है, जो इस लोन को यूज़ करने वाला है, बेसिकली जो भी ये लोन ले रहा है वो इस लोन को किस पर्पस के लिए यूज़ करने वाला है, इस गारंटी सिक्योरिटी किस पर्पस के लिए यूज़ करे जाने वाली है वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि जो अल्टीमेट यूज़र है इसका वो किस तरीके से यूज़ करने वाला है। और भी कोई फैक्ट है तो उस चीज़ को भी डिस्क्लोज़ करना है, ठीक है। तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है जनरल मीटिंग के, और डिस्क्लोजर देना है इन दी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ द नोटिस, क्या क्या, फुल पर्टिकुलर्स अबाउट द लोन्स गारंटी सिक्योरिटी। दूसरा कि पर्पस क्या है ऑफ द यूटिलाइजेशन बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच लोन गारंटी सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि दूसरी कंडीशन है द लोन्स आर यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़। जो कंपनी इसको बोरो कर रही है, लोन ले रही है, उसको वो अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ही यूटिलाइज़ करेगी, ठीक है। तो उसको अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ही यूटिलाइज़ करेगी। तो इसमें पर्पस बता दिया कि आपका जो पर्पस होगा वो मेन पर्पस तो अपना प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी होगा, लेकिन मेन पर्पस में भी कुछ और पर्पस हो सकता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी डिस्क्लोज्ड इन दी नोटिस की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, हमने बता दिया एप्लीकेबिलिटी, फिर हमने बता दी रेस्ट्रिक्शंस के लिए क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस को हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। अब बोला है कि जो रेस्ट्रिक्शंस है ना वो एप्लीकेबल ही नहीं है, कौन से केसेस में, तो वो सबसेक्शन 3 में बताया। इन दी फॉलोइंग केसेस रेस्ट्रिक्शंस स्टेटेड इन सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 और स्पेसिफाइड कंडीशंस फॉर रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस स्टेटेड इन सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई। मतलब जो अभी तक पढ़ा है वो कुछ भी अप्लाई नहीं होगा इन वाले केसेस में। कौन से वाले केसेस में, जहाँ पर भी लोन दिया जा रहा है किसी एमडी या फिर डब्ल्यूटीडी को एज अ पार्ट ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़, या फिर pursuant to any such scheme which is approved by the members by a special resolution। so बोला है सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होंगे। कब नहीं अप्लाई होंगे, जब आप लोन दे रहे हो किसी भी एमडी डब्ल्यूटीडी, किस उसकी सर्विस कंडीशंस का पार्ट है वो इसीलिए दे रहे हो, और ऐसी लोन की जो सर्विस है, ऐसी जो लोन की फैसिलिटी है, दिस इज़ एक्सटेंडेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़, हर एक एम्प्लॉय ले सकता है, ठीक है। ये जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं ये कंपनी ने एक्सटेंड की हुई हैं टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़ एज वेल, या तो ये हो या फिर कोई भी ऐसी स्कीम है जो मेंबर्स ने बनाई है और मेंबर्स ने इस स्कीम को स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया है, एंड इस स्कीम की वजह से आप वो लोन दे रहे हो टू दी एमडी और डब्ल्यूटीडी, तो भी चलेगा। आपको कोई भी कंप्लायंस नहीं करना सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 एंड 2 का, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है वेयर अ कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस provides loans or guarantee security for the due repayment of any loan, and in respect of such loans as interest is charged at a rate not less than the rate of prevailing yield of 1 year, 3 years, 5 years or 10 years government security closest to the tenor of the loan। अच्छा, अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर जो कंपनी है, ठीक है, वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन्स प्रोवाइड करती है, मतलब उसका जो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी है, जो प्राइमरी वर्क है वो है टू प्रोवाइड दी लोन्स गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये जो लोन्स गारंटी सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करती है वो फ्री में नहीं करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस दान में डोनेशन दे दिया ख़त्म, वो वापस लेने के लिए ये लोन गारंटी सिक्योरिटी देती है, मतलब इसकी ड्यू रीपेमेंट भी होगी। प्लस
जो ये लोन दिया जा रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, इसके लिए इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा रहा है। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लगा दिया कि जो वो रेट होगा इंटरेस्ट का, दैट शुड बी समवेयर क्लोज टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर जो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उतने ही इंटरेस्ट रेट पर आपने ये लोन दिया होना चाहिए। मतलब कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 10 ईयर्स टाइम पीरियड, तो उस केस में आपकी जो लोन है उस पर भी समवेयर क्लोज होना चाहिए। मतलब समवेयर क्लोज टू द पीरियड था, वैसे उतना ही होना चाहिए, मतलब 10% होना चाहिए। सपोज़ आपका जो टेन्योर है वो 9 ईयर्स है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो टेन्योर दिया हुआ है वो 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स दिया है। तो 9 अगर आपका है तो समवेयर इट इज़ क्लोज टू 10 ईयर्स, राइट। सो जो भी 10 ईयर्स के लिए रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर मिलता है वही रेट आप इस पर भी चार्ज करोगे, ठीक है। समझ आ गया क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं तो फिर बंदे क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो वो क्या करेंगे, लोन कंपनी से लेंगे और कंपनी से लोन लेकर किसको दे देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देंगे। उनको तो फिर बिना बात के, बिना कुछ करे, सिर्फ डिफरेंस का नेट बेनिफिट हो जाएगा कि यहाँ पर 7% पर लोन लिया, वहाँ 10% पर लगाया, 3% का फ़ायदा बिना कुछ करे। तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, या फिर आपने कंपनी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया होता रादर दैन गिविंग लोन टू द डायरेक्टर, तो उसको ऑब्वियसली बेनिफिट होता, तो क्यों उसने लोन दिया टू द डायरेक्टर, राइट। तो इसीलिए बोला हुआ है जिस कंपनी का काम है या तो लोन्स गारंटी सिक्योरिटी देना और साथ ही साथ उसके लिए वो रीपेमेंट लेती है, ठीक है। इसका केस में सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 नहीं लगेंगे। बट अगर आप जो लोन दे रहे हो उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इंटरेस्ट रेट जैसा नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सेम आपको इंटरेस्ट रेट रखना है, लेकिन टेन्योर के लिए आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स की ही है। आपका जो लोन का टेन्योर है आपको उससे देखना है कि ये वाले जो मेंशन्ड टेन्योर्स हैं वो कितने क्लोज आ रहे हैं। तो जो आसपास का बन रहा होगा उसके हिसाब से आप अपना रेट डिसाइड करोगे। आई होप आई एम क्लियर। मतलब आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तो चार्ज कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दी सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या कह रहा है, वेयर एनी लोन इज मेड बाय दी होल्डिंग कंपनी टू विच होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी ने लोन दिया है टू दी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, या फिर गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है होल्डिंग कंपनी ने टू दी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी खुद की होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है तो उसमें आपको लोन्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। Where any guarantee is given or security is provided by a holding company in respect of loan made by bank or financial institution to its subsidiary company. See, यहाँ पर wholly owned subsidiary company नहीं लिया, ठीक है। दूसरा वर्ड यहाँ पर सिर्फ सब्सिडरी कंपनी लिया है और लिखा है कि अगर किसी सब्सिडरी ने, होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी कंपनी ने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, लोन कंपनी से नहीं लिया, अपनी होल्डिंग कंपनी से नहीं लिया है, लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, और इस लोन के अगेंस्ट कंपनी ने गारंटी, जो होल्डिंग कंपनी है उसने गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, तो उस केस में भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो लोन सब्सिडरी ने डायरेक्ट कंपनी से नहीं लिया है, किससे लिया है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बट कंपनी ने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में लोन ना दे के गारंटी सिक्योरिटी दे दी, तो वो भी चलेगा। उस केस में भी यू डो नॉट रिक्वायर टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड यू डो नॉट नीड टू सी दी कंडीशंस विच हैव बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 एंड देयर आर नो restrictions imposed on these type of transactions or cases. Okay, so let's move on to next thing. As a precondition, it must be ensured that the loans made under clause C and D are utilized by the subsidiary company for its principal business activities. So C और D क्या था, wholly owned subsidiary को दिया है या फिर सब्सिडरी को गारंटी सब्सिडरी के लोन के लिए गारंटी सिक्योरिटी दिया है। तो इन दोनों क्लॉजेज में बोला हुआ है कि ये चीज़ आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो इस पैसे को कहाँ यूज़ कर रही है, वो उस पैसे को बिजनेस के लिए ही यूज़ कर रही है, ऐसी उसको वेस्ट करने के लिए नहीं देना है। उसको इंश्योर करो कि वो उसको सही चीज़ के
के लिए ही यूज़ कर रही है, ये काम किसको करना पड़ेगा, होल्डिंग कंपनी को करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारा सेक्शन ऑलमोस्ट हो गया, बस हमारे पास अब आ जाएंगी पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। सो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन क्या है, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185, दैट इज इफ एनी लोन इज एडवांस्ड और गारंटी और सिक्योरिटी इज गिवन और यूटिलाइज्ड कॉन्ट्रावीनिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185, इसके अगेंस्ट में जाके कुछ काम किया आपने, तो उस केस में कंपनी को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो कंपनी के ऊपर फाइन है 5 लाख टू 25 लाख का। डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर के ऊपर 6 महीने की सज़ा मिल सकती है या फिर फ़ाइन लग सकता है 5 लाख टू 25 लाख का। तो यहाँ पर और लिखा हुआ है और बोथ वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों हो ऐसा नहीं होगा, या तो जेल होगी 6 महीने की या फिर 5 लाख से 25 लाख रुपए तक की फ़ाइन देना पड़ेगा। अच्छा, अब द डायरेक्टर और द अदर पर्सन टू whom any loan is advanced or guarantee security is given in connection with any loan taken by him or the other person, तो उस केस में उस डायरेक्टर पर क्या पेनल्टी, क्या फ़ाइन है, तो उस पर क्या पनिशमेंट है, उसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है या फिर उस पर 5 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक का फ़ाइन हो सकता है, या फिर दोनों वाली कंडीशन हमने डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर के केस में नहीं पढ़ी थी, दोनों वाली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्टर या अदर पर्सन के ऊपर है जिसने भी ये लोन गारंटी सिक्योरिटी लिया है, ठीक है। सो आई होप यू आर डन विद सेक्शन 185 टुगेदर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस यू कैन कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो अबाउट इट, आई विल ट्राई my best to clarify your doubts. And for section 185 we are done. Let's start with section number 186. Section 186 is given on page number 3.47. Let's start with it. Loan and investment by the company, section 186. Section 186 of the act applicable to both public and private companies. तो यहाँ पर किस पे applicable हो जाएगा section 186, public पर भी private पर भी. Deals with the provisions relating to loans and investments by the company. In addition, rules 11, 12, 13 also contain the provisions governing the making of loans and investments, giving of guarantees and providing of securities by a company. These provisions are discussed as under. So first point क्या है, investment permitted through 2 layers of investment companies. Section 186 subsection 1. A company, unless otherwise prescribed, is not permitted to make investment through more than 2 layers of investment companies. Basically, if there is a company A Limited ने B Limited में इन्वेस्ट किया, B Limited क्या है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फिर B Limited ने फर्दर C Limited में इन्वेस्ट किया, तो मैक्सिमम, और C Limited भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट की ये लेयर्स हो सकती हैं ये 2 हो सकती हैं, मतलब A Limited सिर्फ और सिर्फ B और फिर उसके नीचे C तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, फर्दर C, D में, E में, F में ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। नहीं तो पैसा रोटेट होता था, इसीलिए उसको बंद करने के लिए पता नहीं चलता था सोर्स कहाँ से और आया कहाँ पर, इसीलिए उसको काब करने के लिए ये प्रोविज़न लाया गया कि सिर्फ 2 लेयर्स तक ही कर सकते हो आप। So placing of such a restriction helps in preventing the diversion of funds. It is a common experience that the funds can be more frequently diverted if a company invests through a number of step-down subsidiaries. So the logic is same कि वही आप बार बार इधर से उधर इन्वेस्ट करते हो तो पता नहीं चलता सोर्स कहाँ है और एक्चुअल में कहाँ गया, तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, काब करने के लिए they have made this provision. Now, what does this note say? Note gives you an explanation कि इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है. सो इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज़ द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर अदर सिक्योरिटी. से मेन काम क्या है उसका, एक्विजिशन का है, डिबेंचर्स का है, सिक्योरिटीज़ का है. सो सिंस पहले क्या करते थे लोग, एक कंपनी बनाई, उस कंपनी से एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, उस सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, अब ये सब्सिडरी कंपनी से फ़ंड्स को ट्रांसफ़र किया दूसरी सब्सिडरी में, फिर फंड्स को ट्रांसफ़र किया तीसरी सब्सिडरी में, फिर ऐसे करते 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 गए. अब वो जो नीचे की सब्सिडरीज़ है ना वो कुछ काम नहीं करती, सिर्फ पैसा घुमाने के लिए सब्सिडरीज़ बनाई हुई हैं, पैसा रोटेट करने के लिए सब्सिडरीज़ बनाई हुई हैं. तो इसीलिए एक तो आपका प्रिंसिपल बिजनेस या फिर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़ है, या फिर
क्या बोला हुआ है कि डीम्ड मानी जाएंगी। क्यों डीमिंग प्रोविजन लाया गया, नहीं तो फिर प्रिंसिपल बिजनेस कुछ और रख लेते और एक्चुअल में इनकम तो उसी से आ रही होती, तो उसको ख़त्म करने के लिए डीमिंग प्रोविजन आया। फर्दर अ कंपनी विल बी डीम्ड टू बी प्रिंसिपली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर अदर सिक्योरिटीज़ if its assets in the form of investment in shares, debentures या फिर other securities constitute not less than 50% of its total assets। आपकी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें हमने देखा कि जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स किस में, शेयर्स की फॉर्म में, डिबेंचर सिक्योरिटीज़ में, ये आपके टोटल एसेट्स का कम से कम 50% फॉर्म कर रही हैं। मतलब आपके जो एसेट्स हैं उसमें 50% या उससे ज़्यादा तो आपकी यही इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो उस केस में मान लिया जाएगा कि आप भी क्या हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। आपका जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो यही है कि आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, एक्वायर करते हो शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर सिक्योरिटीज़। या फिर या तो एक डीमिंग प्रोविज़न ये डाल दिया, या फिर बोला कि अगर आपकी इनकम जो है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस से इनकम जनरेट हो रही है, वो एटलीस्ट आपकी ग्रॉस इनकम का 50% है। आपकी ग्रॉस इनकम का 50% या उससे ज़्यादा तो आपको इनकम इन्वेस्टमेंट बिजनेस से ही मिल रही है, तो माना जाएगा कि आपका जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो एक्विजिशन शेयर्स का है, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज़ का ही है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। ओके, नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ 2 लेयर्स। अब कुछ एक्सेप्शन डाल दी, हमेशा हम पढ़ते हैं कोई प्रोविजन होता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो एक्सेप्शन क्या है टू द रूल ऑफ 2 लेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई, दैट इज रूल ऑफ 2 लेयर्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा किस पर, acquisition of a company incorporated outside India. If a company acquires any other company incorporated in a country outside India, and if such other company has investment subsidiaries beyond 2 layers as per the laws of such country, the rule of 2 layers shall not prevent this kind of acquisition. A limited है इंडिया की, B लिमिटेड है बाहर की कंट्री की, फॉरेन कंट्री। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, बट बी लिमिटेड की सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी सब्सिडरीज बन रही हैं मोर देन 2 लेयर्स, लेकिन ऐसा उसके कंट्री के लॉज के हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस केस में ए लिमिटेड के पास परमिशन है, उसको सेक्शन 186 रोकेगा नहीं इस बात से कि आप बी लिमिटेड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, next exception, subsidiary from having an investment subsidiary. Again the rule of 2 layers shall not prevent a subsidiary company from having any investment subsidiary for the purposes of meeting the requirements under any law or under any rule or regulation framed under any law for the time being in force. So जो 2 layers का provision है वो किसी भी subsidiary company को इस चीज़ से restrict नहीं कर रहा कि आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी नहीं रख सकते। आप चाहे तो लॉज के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट है, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, आपको अगर वो रिक्वायरमेंट को मीट करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू इट। ओके, सो लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2, imposition of limit on the quantum of loan and investment made by a company. Now according to section 186 subsection 2, the following types of transactions, both direct and indirect, shall be subject to the specified limit as depicted in the diagram. So limit लगा दी, क्या limit लगाई, giving of loan to any person or other body corporate, giving of guarantee or provision of security in connection with the loan to any other body corporate or person, या फिर acquiring by way of subscription, purchase or otherwise the securities of any other body corporate. So इन 3 चीज़ों को अगर आप कर रहे हो तो कंपनी नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, no company shall exceeding 60% of its paid up share capital, free reserve, securities premium account or 100% of its free reserves and securities premium account, whichever is more. बेसिकली अगर भी किसी भी कंपनी को लोन देना है, गारंटी सिक्योरिटी देना है, या फिर सब्सक्रिप्शन के थ्रू एक्वायर करने हैं, परचेज़ करने हैं सिक्योरिटीज़ को, किसी भी दूसरी बॉडी कॉरपोरेट के शेयर्स को क्या करना है, आपको सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना है, सब्सक्राइब करना है, तो इन चीज़ों को करने के लिए आप कर सकते हो, गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हो, लोन दे सकते हो, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट टू इट। क्या लिमिट है, लिमिट ये है कि आप पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स,
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तीनों को ऐड करो, तीनों का ऐड करने के बाद 60% निकालो, ठीक है। फिर इसको कंपेयर करो विद फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का टोटल, जो भी आपकी कंपनी के फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है उसके टोटल के साथ कंपेयर करो 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी सबसे ज़्यादा आ रहा होगा उस ज़्यादा वाली अमाउंट को ले लो। यही आपकी है लिमिट कि आप इतनी लिमिट तक ही लोन दे सकते हो, गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हो या फिर एक्विजिशंस कर सकते हो, ठीक है। सो लिमिट क्या होगी, 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम विच एवर इज़ मोर, ठीक है। तो ये आप पे लिमिट बता दी कि इतनी लिमिट तक आप कर सकते हो। नाउ फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 द वर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड एनी इंडिविजुअल हु इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी का एम्प्लॉय है तो उस केस में ये वाला प्रोविज़न नहीं लगेगा, उसमें ये नहीं इंक्लूडेड माना जाएगा, तो उसको आप दे सकते हो। नाउ लोन्स एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉयज़ पर कुछ क्लैरिफिकेशन आया, उसको भी पढ़ते हैं। The MCA has clarified that loans and or advances made by the companies to their employees other than the managing or whole time directors। अब यहाँ पर other than the managing or whole time directors क्यों लिखा है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर्स को तो हम ऑलरेडी सेक्शन 185 में अभी पढ़ कर आए हैं, तो उनको छोड़कर आर नॉट गवर्नड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 186। मतलब सेक्शन 186 आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ पर नहीं लगता है। दिस क्लैरिफिकेशन विल हाउएवर बी एप्लीकेबल इफ सच लोन्स एडवांसेस टू एम्प्लॉयज़ आर इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ सर्विस एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़ and are also in accordance with the remuneration policy in cases where such policy is required to be formulated। तो देखो ये जो आपको एक्सेप्शन दी है ना कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर सेक्शन 186 नहीं लगेगा, वो तब है जब आपकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस थे या फिर जबकि रेमुनरेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ठीक है। आपकी कंडीशंस ऑफ सर्विस में लिखा हुआ है ये चीज़ या फिर आपकी जो रेमुनरेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव द लोन्स टू द एम्प्लॉयज़, गारंटी सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द लोन्स टेकन बाय द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो उस केस में देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नाउ इन अदर वर्ड्स अ कंपनी is permitted to enter into transactions of giving loan or guarantee or providing security or acquiring of securities, that is shares, debentures, etc. in the aggregate up to 60% of its paid up share capital, both equity and preference। देखो इसी तरह से पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा था पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी नहीं लिखा ना, तो मतलब दोनों तरीके के शेयर कैपिटल इंक्लूडेड होंगे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ नोट करने के लिए जो थी वो थी सेकेंड लाइन में लास्ट 3 वर्ड्स लिखे हैं इन दी एग्रीगेट। व्हाट डज दिस मीन, इन दी एग्रीगेट का मतलब जो ए बी सी हमने टॉप ऑफ द पेज पर पढ़ा था, ए बी था, इन तीनों के टोटल की लिमिट बताई हुई है। ये मत सोच लेना कि लोन के लिए 60% और 100% वाली निकालोगे फिर चेक करोगे, फिर गारंटी सिक्योरिटी के लिए इंडिविजुअली चेक करोगे, फिर इसके लिए चेक करोगे एक्विजिशन के लिए, ऐसा नहीं है। टोटल जो लोन गारंटी सिक्योरिटी एक्विजिशंस कर सकते हो उसके लिए लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये चीज़ आपको कहाँ से नीचे पहले पैराग्राफ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी अगर आपने पहले नोटिस नहीं किया था तो। सो इन अदर वर्ड्स अ कंपनी इज परमिटेड टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस ऑफ गिविंग लोन और गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और एक्वायरिंग ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स, डिवेंचर्स इन द एग्रीगेट कॉमा up to 60% of its paid up share capital, both equity and preference, free reserves and securities premium, or 100% of its free reserves and securities premium, whichever is more। ठीक है, यहाँ तक तो आपको लिमिट भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर जहाँ पर लिखा है प्रायर अप्रूवल बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर एक्सीडिंग लिमिट। तो एक्सीडिंग लिमिट मतलब जो भी लिमिट पड़ी, अगर इससे ज़्यादा का लोन गारंटी सिक्योरिटी देना है, एक्विजिशंस करना है, तो आपको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। Section 186 subsection 3 says this, where the aggregate of the loans and investments so far made, the amount for which guarantee or security so far provided, मतलब जो अब तक प्रोवाइड कर चुके थे लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, अभी तक सबका टोटल जो प्रोवाइड कर चुके थे to or in all other body corporates along with the investment, loan, guarantee, security proposed to be made or given by the board। मतलब जो दे चुके थे प्लस जो अब देने वाले थे सभी का टोटल देखो
अगर वो टोटल एक्सीड कर रहा है द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 जो हमने अभी अभी पढ़ी 60% और 100% वाली, नो इन्वेस्टमेंट और लोन शैल बी मेड और गारंटी शैल बी गिवन और सिक्योरिटी शैल बी प्रोवाइडेड अनलेस प्रीवियसली ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट कब है? सिर्फ तब है जब आपकी जो भी लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी का टोटल अभी तक जो आप कर चुके हो प्लस जो प्रपोज्ड टू बी टेकन है वो एक्सीड कर जाता है टू द लिमिट विच वी हैव ऑलरेडी रेड इन सेक्शन 186 सब सेक्शन 2। तो उस केस में आप वो प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन, प्रपोज्ड गारंटी, सिक्योरिटी, लोन या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अनलेस यू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन विच इज़ पास्ड इन द जनरल मीटिंग। Note 1. In case the provisions of section 110 of the act apply to the company which is considering giving of loans or extending guarantee or providing security in excess of the limit specified in section 186 subsection 3, it shall pass the special resolution containing such item of the business by means of voting through postal ballot. अगर कंपनी पे सेक्शन 110 लग रहा है तो उसको पोस्टल बैलेट वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन नोट नंबर 2 क्या कहता है? OPC और नहीं, OPC and other companies having members up to 200 are not required to transact any business through postal ballot। अगर आपकी कंपनी कौन सी वाली है, OPC है या फिर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 200 हैं, मतलब 200 तक ही हैं, तो उस केस में पोस्टल बैलेट के थ्रू आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, disclosure of total amount in resolution in respect of loan, guarantee और security और acquisition। तो जो भी आप गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स दे रहे हो, एक्विजिशंस कर रहे हो, इसके लिए आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया क्योंकि एक्सेस हो रहा था, एक्सीड कर रहा था लिमिट से। तो इसके लिए जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया ना, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर ये भी बात लिखी हो कि कितने अमाउंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। नहीं तो अगर सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता तो आप भी बताइए क्या होता। कंपनी जो डायरेक्टर्स हैं जितना मर्जी लोन लेते, जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट करते, कोई लिमिट ही नहीं होती। शेयर होल्डर्स ने सोचा होता कि इतना ही करेंगे, बट वो तो करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो ट्रांजैक्शन होनी भी वाली है या जितना भी वो एक्सेस अलाउ कर रहे हैं, दैट शुड बी मेंशन्ड इन दी रेजोल्यूशन। So as per the rule 13 of the company's meetings of board and its powers rules 2014, a resolution passed at a general meeting in terms of section 186 subsection 3 to give any loan or guarantee or investment or providing any security or the acquisition under section 186 subsection 2 shall specify the total amount up to which the board of directors are authorized to give such loan guarantee or to provide security or to make acquisition। तो लिमिट बताओ भाई, उनकी लिमिट कितनी है, वो आपको रेजोल्यूशन के अंदर बताना पड़ेगा। नाउ देर इज़ एन एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये चीज़ कहाँ दी हुई है? फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 186 सब सेक्शन 3 एंड रूल 11 सब रूल 1। However, where a loan guarantee is given or security has been provided by the company to its wholly owned subsidiary company, joint venture company या फिर acquisition किया गया है by the holding company by way of subscription, purchase or otherwise of the security of its wholly owned subsidiary। होली ओन सब्सिडरी को ख़रीदने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर जो लोन, सिक्योरिटी, गारंटी दिया है वो किसी होल्डिंग कंपनी ने अपनी खुद की होली ओन सब्सिडरी को दिया है, जॉइंट वेंचर को दिया है, या फिर किसी होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किए हैं सिक्योरिटीज़ ऑफ इट्स होली ओन सब्सिडरी। तो जो रिक्वायरमेंट है ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की, वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो तो आपकी कंपनी जैसा ही पार्ट है, कंपनी का ही पार्ट है। तो इसीलिए उस केस में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग दी स्पेशल रेजोल्यूशन। Disclosure in the financial statement, second proviso to section 186 subsection 3 and proviso to rule 11(1). In case of exemption from special resolution, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा, the company shall disclose the details of such loans, guarantee, security, acquisitions as provided under section 186(4). तो 186(4) में जैसा लिखा है उस हिसाब से वो डिस्क्लोजर्स कर दो, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ उन्हीं को डिस्क्लोजर के लिए बोला हुआ है। नाउ डिस्क्लोजर टू मेंबर्स सेक्शन 186 सबसेक्शन 4 जस्ट नीचे ही लिखा है, जिसका ऊपर रेफरेंस आया था अभी। एंड प्रोविजो टू रूल 13, द कंपनी शैल मेक फुल डिस्क्लोजर टू द मेंबर्स एज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम।
तो डायग्राम देखते हैं क्या बोला हुआ है. कंपनी शैल डिस्क्लोज टू द मेंबर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गिवन, इन्वेस्टमेंट मेड और गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड and the purpose for which the loan guarantee security is proposed to be utilized by the recipient of loan or guarantee or security. तो ये चीज़ हमने 185 में भी पढ़ी थी. यहाँ पर भी है कि लोन कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी है तो कितना है, प्लस उसका पर्पस क्या है, मतलब वो यूज़ करने वाले किस तरीके से हैं वो भी बताओ. ठीक है. Next, unanimous resolution of the board, section 186 subsection 5. Any investment shall be made or loan or guarantee or security shall be given by the company only after the resolution sanctioning it is passed at a meeting of the board with the consent of all the directors present at the meeting. इसका मतलब क्या हुआ, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन चाहिए, मतलब सैंक्शनिंग इट इज़ पास्ड एट अ मीटिंग, मतलब मीटिंग होगी तो रेजोल्यूशन पास होगा. मतलब ये सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मीटिंग के अंदर ही पास होना ज़रूरी है. दूसरा लिखा है बोर्ड की मीटिंग, तीसरा लिखा है कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, विच मीन्स बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है. अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, पहली लाइन में लिखा है एनी इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर विद इन द लिमिट है, विद इन द लिमिट है, जो लिमिट हमने पढ़ी सबसेक्शन 2 के अंदर, उस लिमिट के अंदर है, तब भी देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि बोर्ड का यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह. ठीक है. सो स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट तो तभी थी जब एक्सेस हो जाता है, लेकिन यूनानिमस रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी केस, राइट. ओके. सर्कमस्टांसेस, अब जो ये मीटिंग वाली बात लिखी थी ना, इट इज़ पास्ड एट अ मीटिंग, ये आपको याद हो तो हमने सेक्शन 179 पढ़ा था, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि कहाँ कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर मीटिंग होनी ज़रूरी है. मतलब ये जो रेजोल्यूशंस हैं ये पास तभी होंगे जब मीटिंग होगी, मतलब सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू आप नहीं पास कर सकते, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकता. तो वो वाली चीज़ सेक्शन 179 में लिखी हुई थी, वो वाला प्रोविज़न 179 में लिखा था, तो उसकी वजह से भी आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था कि ये वाला तो मीटिंग होकर ही पास हो सकता है रेजोल्यूशन, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था कोई भी लोन्स इन्वेस्टमेंट्स अगर कंपनी देती है तो दैट रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड एट अ बोर्ड मीटिंग, राइट. तो ये चीज़ मीटिंग में होनी है, ये हमें पता था बिकॉज ऑफ सेक्शन 179 ओनली. बट विद द यूनानिमस रेजोल्यूशन होगी, ये सेक्शन 186 सबसेक्शन 5 की वजह से पता चला है. ठीक है. चलो, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि कितने भी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो तो बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड. एक्सेस हो जाता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड. नाउ द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंसर्न्ड वेयर एनी टर्म लोन इज सबसिस्टिंग शैल ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड. तो अगर कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने टर्म लोन लिया था और अभी तक वो टर्म लोन रीपे नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको उस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा. लेकिन नीचे लिख दिया कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर आपको पीएफआई का, मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो प्रायर अप्रूवल है वो नहीं चाहिए होगा. मतलब प्रायर अप्रूवल ऑफ पीएफआई इज़ नॉट कंपलसरी इन ऑल द केसेस. देर आर सर्कमस्टांसेस जहाँ पर उसको एग्जेम्प्ट किया गया है. सिमिलरली जैसे एग्जेम्पशंस गिवन थी टू द स्पेशल रेजोल्यूशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग एज पर सेक्शन 186 सब सेक्शन 3, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था. तो सिमिलरली प्रायर अप्रूवल के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो दी हुई हैं प्रोविजो टू सेक्शन 186 सबसेक्शन 5 में. क्या एक्सेप्शन है? प्रायर अप्रूवल ऑफ अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड वेयर द एग्रीगेट ऑफ द लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स सो फार मेड, the amount for which guarantee security so far provided to or in all other body corporates along with the investments, loan, security, guarantee proposed to be made. मतलब ऐसी बात लिखी हुई है, total of what you have already given plus you are proposed to be given, that are proposed to be given, you are proposed to be giving that loan. तो वो सभी का टोटल जो है वो एक्सीड नहीं करता द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 186 सबसेक्शन 2. मतलब अभी तो आप बियॉन्ड द लिमिट गए नहीं हो, विद इन द लिमिट हो, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है. फिर लिखा हुआ है एंड,
फिर क्या लिखा हुआ है, एंड, मतलब ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होने के साथ साथ दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो यू वोंट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला तो था 186 सब सेक्शन 2 के हिसाब से लिमिट अभी एक्सीड नहीं हुई है, आप विद इन द लिमिट चल रहे हो, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन की अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं आई है। प्लस there is no default in repayment of loan installments or payment of interest thereon as per the terms and conditions of such loan to the public financial institution। लिमिट एक्सीड नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है, आपको पीएफआई के अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन अगर लिमिट एक्सीड नहीं भी हुई पर आपने जो लोन्स रीपे करने थे, इंटरेस्ट पे करना था इस पीएफआई को, उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उस केस में आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्यों? आप बाहर कहीं लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप पहले पीएफआई का लोन दो ना, आपने उसमें रीपेमेंट नहीं किया तो इस केस में आपने उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो पहले उनका डिफ़ॉल्ट क्लियर करना चाहिए था। डिफ़ॉल्ट नहीं क्लियर कर रहे तो उनका अप्रूवल लो भाई, पहले बाहर पैसा देने से। पैसा तभी तो आप कंपनी से बाहर ले जाना सही रहेगा ना, जब आपने किसी पीएफआई का पैसा दे दिया हो। आपने तो पीएफआई का ही डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो पहले पीएफआई को रीपे करना चाहिए था, नहीं कर रहे हो तो पहले उनसे प्रायर अप्रूवल लो कहीं और पैसा देने से पहले। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विद द रीज़न। तो हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी? हमने पढ़ा कि अगर लिमिट एक्सीड कर जाती है तो देखो क्या क्या होगा। लिमिट एक्सीड कर जाएगी तो सबसे पहले तो आपको बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे भी चाहिए होता चाहे लिमिट एक्सीड नहीं होती, तो ये तो आपकी रिक्वायरमेंट प्राइमरी है, ये तो आपको चाहिए। दूसरा, सिंस आपकी लिमिट एक्सीड कर गई है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस विच हैव बीन गिवन इन द प्रोविज़ो, उसको छोड़कर वैसे जनरली आपको चाहिए होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। प्लस क्योंकि आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है तो आपका वो प्रोविज़ो में कवर नहीं हो रहे सेक्शन 186 सब सेक्शन 5 के, जहाँ पर सर्कमस्टांसेस दिए हैं नो अप्रूवल रिक्वायर्ड वाले फ्रॉम द पीएफआई। तो इस केस में आपको तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल मीटिंग प्लस प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द पीएफआई। कब? जब आपकी लिमिट एक्सीड कर जाती है। अब बात करते हैं लिमिट एक्सीड नहीं कर रही। लिमिट एक्सीड नहीं कर रही तो कुछ नहीं है, बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन ले लो, हो जाएगा। लेकिन अब आपको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, क्या कि क्या आपने पीएफआई का कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया। अगर आपने पीएफआई का डिफ़ॉल्ट किया है तो साथ में बोर्ड मीटिंग की यूनानिमस रेजोल्यूशन के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, पीएफआई का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, इवन दो द लिमिट हैज़ नॉट एक्सीडेड बट यू हैव कमिटेड द डिफ़ॉल्ट। तो 3 केसेस समझ सकते हो। पहला केस क्या है? सिंपल, लिमिट एक्सीड नहीं कर रही प्लस देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट ऑफ द पीएफआई, ठीक है, नो रीपेमेंट डिफ़ॉल्ट। तो इस केस में सिर्फ बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। सेकंड केस, आपकी लिमिट एक्सीड कर जाती है बट देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट, लिमिट एक्सीड कर जाती है बट देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट, तो आपको बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और पीएफआई का अप्रूवल चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आपने लिमिट एक्सीड कर दी, एक कंडीशन आपकी वायलेट हो गई, तो लिमिट एक्सीड होते ही आपको पीएफआई का अप्रूवल तो चाहिए। तीसरा केस लेते हैं, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया लेकिन आपकी लिमिट एक्सीड नहीं हो रही, डिफ़ॉल्ट किया, लिमिट एक्सीड नहीं हो रही, बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन और आपको प्रायर अप्रूवल फ्रॉम दी पीएफआई चाहिए होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आए तो आप इसको बैक करके फिर से एक बारी सुनना, आपको पक्का क्लियर हो जाएगी। इसमें 3 केसेस बन सकते हैं, उन 3 केसेस को पेपर पेन से लिख लेना, पेपर पेन से लेकर, और फिर उसको समझने की कोशिश करना अलॉन्ग विद द प्रोविजन रीड करो, फिर उसको समझने की कोशिश करो, आपको पक्का समझ आ जाएगा। इसमें 3 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत ईजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है अगर आपको एक बारी क्लियर हो गया। पहली चीज़ ध्यान रखो, बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन तो हमेशा चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या याद रखोगे कि पीएफआई का अप्रूवल तभी नहीं चाहिए होता जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ याद रखो, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको हमेशा तब चाहिए होगा जब एक्सेस ऑफ दी लिमिट हो जाता है। बस इसको सोच के तीनों केसेस बना लो फटाफट, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा ये वाला प्रोविजन, ये वाला सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात लिखी हुई है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन की, ये वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो हमने पहले भी पढ़ी थी सेक्शन 185 के अंदर, कि जो लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट से कम नहीं होना चाहिए।
एज पर दी टेन्योर ऑफ द लोन एंड एज पर दी टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो भी क्लोजेस्ट बन रहा होता है उसके हिसाब से कंपेयर कर लो। तो सेम प्रोविजन है, इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं बस इसकी क्लैरिफिकेशन एक बार ही पढ़ रही हूँ। The MCA has clarified that in cases where effective rate of return on tax-free bonds is greater, जो effective rate of return है tax free bonds पर वो ज़्यादा है than the prevailing yield of 1 year, 3 year, 5 year, 10 year government security closest to the tenor of the loan, there is no violation of subsection 7. What does this mean? कि even though अगर आपके tax free bonds भी हैं, ठीक है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी हैं, उस पर तो रेट ज़्यादा का है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो देर इज़ नो वायलेशन। क्यों? क्योंकि सेक्शन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा है, तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कंसिडर करेंगे। उसमें टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर चाहे ज़्यादा भी हो जाए तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन लाया गया विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी सेक्शन 186 सबसेक्शन 7 में। 186 सबसेक्शन 7 किस चीज़ का है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दी फॉर दी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज़ के लिए क्या मॉडिफिकेशन करी? इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज विच हैव नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 137 और सेक्शन 92, तो उस केस में एक प्रोविज़ो ऐड कर दी इन सेक्शन 186 सबसेक्शन 7। क्या प्रोविज़ो ऐड करी? Provided that nothing contained in this subsection shall apply to a company in which 26% or more of the paid up share capital is held by the central government or one or more of the state governments or both in respect of loans provided by such company for funding the industrial research and development projects in furtherance of its objects as stated in its memorandum of association. अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी ने, ऐसी किसी सेक्शन 8 कंपनी ने किसी इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लोन दिया है, किसी भी सेक्शन 8 कंपनी ने किसी इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लोन दिया है और ये इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस लोन को अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही यूज़ करने वाली है, जो उसके मेमोरेंडम और एसोसिएशंस में लिखा है, तो उस केस में ये गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर सेक्शन 186 सबसेक्शन 7 अप्लाई नहीं होगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम भी हुआ दैन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो भी चलेगा, लेकिन ये सेक्शन 8 कंपनी ऐसी सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है इस सेक्शन 8 कंपनी में 26% और मोर। किसी सेक्शन 8 कंपनी में अगर किसी गवर्नमेंट ने, मैं गवर्नमेंट बार बार रिपीट नहीं कर रही कौन सी वाली, आप पूरा पढ़ सकते हो। सेक्शन 8 कंपनी में गवर्नमेंट ने, मैं शॉर्ट में गवर्नमेंट यूज़ कर रही हूँ, सेक्शन 8 कंपनी ने सेक्शन 8 कंपनी में गवर्नमेंट का 26% या ज़्यादा से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है और इस सेक्शन 8 कंपनी ने किसी इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में को लोन दिया है, जो कि इस लोन को अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन 8 कंपनी पर अगर इस सेक्शन 8 कंपनी ने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रोविजन। नो गिविंग ऑफ लोन्स, no giving of loan etc till default in respect of deposits is subsisting. सेक्शन 186 सबसेक्शन 8 क्या कहता है? नो गिविंग ऑफ लोन एट्सेट्रा टिल डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स इज सबसिस्टिंग। अब ये क्या है? अ कंपनी विच इज़ इन डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 or in payment of interest thereon shall not give any loan or give any guarantee or provide any security or make an acquisition till such default is subsisting. कंपनी को लोगों ने डिपॉजिट्स दिए, ठीक है, तो उन डिपॉजिट्स को कंपनी को क्या करना था? रीपे करना था। अब रीपे जो करना था वो उसने नहीं किया, इंटरेस्ट जो पे करना था उन डिपॉजिट्स पर वो भी पे नहीं किया, तो इस केस में कोई भी लोन गारंटी, सिक्योरिटी या फिर एक्विजिशन करने से
पहले आप उनका डिपॉजिट क्लियर करो ना। जब तक आपने उनके डिपॉजिट्स का डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो यहाँ पर प्रायर अप्रूवल वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि आप दे ही नहीं सकते कोई भी लोन गारंटी सिक्योरिटी, ना ही कोई एक्विजिशन कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर कोई डिफ़ॉल्ट जो एक्सेप्ट करे थे, चाहे कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले करे थे, बाद में करे थे, इररेलेवेंट। आपने एक्सेप्ट करे थे, रीपे करना था, रीपे नहीं किया, इंटरेस्ट पे करना था, इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो आपको लोन गारंटी सिक्योरिटी या फिर एक्विजिशंस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर सेक्शन 186 सबसेक्शन 9, every company shall give every company giving loan or giving a guarantee or providing security or making an acquisition shall keep a register. It shall contain such particulars and shall be maintained in such manner as is prescribed in Rule 12 of the Companies Meetings of Board and its Powers, Rules 2014. The requirements of Rule 12 are as under. Every company shall, from the date of its incorporation, मेंटेन अ रजिस्टर इन फॉर्म MBP2। तो मेंटेन कौन सा करना पड़ेगा? रजिस्टर MBP2। कब से? जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से। एंड एंटर देयर इन सेपरेटली द पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स एंड गारंटीज गिवन, सिक्योरिटीज़ प्रोवाइडेड एंड एक्विजिशंस मेड। तो उसके अंदर उनको बताना पड़ेगा क्या क्या लोन्स दिए हैं, क्या गारंटीज़ दिए हैं, क्या सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करी हैं और क्या एक्विजिशंस किए हैं। तो ये चीज़ आपको सेपरेटली एंटर करनी पड़ेंगी। जो एंट्रीज़ आप करोगे वो क्रोनोलॉजिकली करोगे, मतलब सिक्वेंशली करोगे। जब भी वो ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन होने के 7 डेज़ के अंदर अंदर, मैक्सिमम आपको 7 डेज़ का टाइम दिया है जब तक आप उसमें एंट्री कर सकते हो। The register shall be kept at the registered office of the company, and the register shall be preserved permanently and shall be kept in the custody of the company secretary of the company or any other person authorized by the board for the purpose। ये हमने सेक्शन 189 में भी पढ़ा था। जो सेक्शन 184 के साथ मैंने वीडियो डाला हुआ है उसके अंदर सेक्शन 189 इज़ ऑल्सो कवर्ड। इफ़ यू वांट टू सी इट, प्लेलिस्ट मेंशन्ड है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो उसमें भी हमने सेम पॉइंट कवर किया था कि रजिस्टर को आपको कहाँ रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना है। किसकी कस्टडी में रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी बोर्ड ने पर्सन को ऑथराइज किया हुआ है तो उसकी कस्टडी में रहेगा। जो भी एंट्रीज़ होंगी, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, मैनुअल फॉर्म में हो, वो ऑथेंटिकेट की जाएंगी बाय द CS, या फिर कंपनी के बोर्ड ने किसी भी पर्सन को ऑथराइज़ किया हुआ है तो वो बंदा, सेम वही प्रोविज़न है। रजिस्टर को जो आपको मेंटेन करना है या तो मैनुअली करना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना है। बाकी जो भी रजिस्टर है उसके अगर कोई एक्सट्रैक्ट्स कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी मांगता है कि मुझे ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट दे दो, तो वो ऐसा कर सकता है, मांग सकता है और उसको आपको देना पड़ेगा। आप उसके लिए फ़ी चार्ज कर सकते हो। अब फ़ी जो आप चार्ज कर सकते हो वो एज़ पर दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कर सकते हो, लेकिन आप आर्टिकल्स में 10 रुपये पर पेज से ज़्यादा का अमाउंट नहीं लिख सकते, मतलब एक पेज का 10 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। Provisions regarding keeping of register of loan and investment and its inspection. Provisions regarding keeping of register of loan and investment and its inspection, section 186 subsection 10. The register shall be kept at the registered office of the company. This is also prescribed by Rule 12. तो रजिस्टर को आपको कहाँ रखना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा। ये ओपन टू इंस्पेक्शन होगा, ये भी हम प्रोविज़न पहले पढ़ चुके हैं। एंड जो भी एक्सट्रैक्ट्स होंगे वो मेंबर ले सकते हैं, उनकी कॉपीज़ करवा सकते हैं और उसके साथ वो फ़ीस देना पड़ेगा। फ़ीस का मैक्सिमम जो प्राइस है दैट कैन बी 10 रुपीज़ पर पेज। वैसे तो जो भी आपका मैंशनड है रूल 12 में उसके हिसाब से, नहीं तो जो भी फ़ीस प्रिस्क्राइब्ड है मैक्सिमम 10 रुपीज़ पर पेज। नेक्स्ट आ जाता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 186 एक्सेप्ट सबसेक्शन 1। मतलब सबसेक्शन 1 तो अप्लाई होगा जहाँ पर हमने 2 लेयर्स की बात करी थी, उसके अलावा कोई भी प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा कुछ ट्रांजैक्शंस पर, जो कि सेक्शन 186 सबसेक्शन 11 में दिया हुआ है। सेक्शन 186 शैल नॉट अप्लाई एक्सेप्ट सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 shall not apply to any loan made or guarantee given or any security provided or any investment made by a banking company, insurance company, housing finance company in the ordinary course of business। देखो इनका तो ये रोज़ का ही काम होता है। अगर ये रोज़ ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाली रिक्वायरमेंट और ये सब चीज़ें करने लग गए कि बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए इनको इस सेक्शन की प्रोविजन से हटा दिया। किसको? बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को, जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही ये है, या फिर कोई भी गारंटी सिक्योरिटी लोन
कर दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, मेड बाय अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस और ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। कोई ऐसी कंपनी है जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को फाइनेंस करने का है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का है, तो उन कंपनी को भी छोड़ दिया इस रिक्वायरमेंट से, क्योंकि फाइनेंस करोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी गिविंग लोन्स, यू विल बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ फंड्स, तो ये बार बार चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए उनको एग्जेम्पशन देती। या फिर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा टू एनी इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन वही है जो हमने पहले पढ़ी थी सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 पढ़ते हुए, सेम है, उसको मैं फिर से रीड नहीं कर रही हूँ। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट की गई है बाय द इन्वेस्टमेंट कंपनी, या फिर टू एनी इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 62 सब सेक्शन 1, मतलब राइट शेयर्स के केस में शेयर्स अलॉट हुए हैं एंड राइट इशूज़ की वजह से हुए हैं, तो उस केस में भी सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 को छोड़कर कोई भी प्रोविज़न नहीं लगाया जाएगा। Made in respect of investment or lending activities by a non-banking financial company registered under Chapter 3B of the Reserve Bank of India Act 1934, whose principal business is acquisition of securities। जैसे बैंकिंग कंपनी होती है ऐसी NBFCs को भी दे दिया। ठीक है, कौन सी NBFCs? जो भी इन्वेस्टमेंट्स या लेंडिंग एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जिनका मेन ही काम ही यही है कि वो एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ करती हैं, तो उनको भी एग्जेम्पशन देती। तो किस किस को दी? पहला, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का। सेकंड, ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को फाइनेंस करना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करी जा रही है बाय द इन्वेस्टमेंट कंपनी, या फिर इन्वेस्टमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ राइट शेयर्स या फिर राइट इशूज़ कर रही है कंपनी, इसलिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट या लेंडिंग एक्टिविटी की जा रही है बाय दी NBFCs, जिसका मेन ही काम किस चीज़ का है, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो इनको एग्जेम्पशन है कि वो सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 छोड़कर कोई भी सेक्शन के प्रोविजंस को अप्लाई नहीं करेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन दी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स डिपॉजिट्स टू बी टेकन बाय दी कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ SEBI। A company registered under Section 12 of Securities Exchange Board of India Act 1992. This act is also there in our syllabus, and covered under class or classes of companies which may be notified by the CG in consultation with the SEBI, shall not take inter-corporate loans या फिर deposits in excess of the limit specified under the regulations applicable to this kind of company. So इस कंपनी को जो भी regulations prescribed हैं, applicable हैं, उसको छोड़कर, मतलब उसके एक्सेस में, उसके एक्सीडिंग कुछ भी नहीं ले सकते आप इंटर कॉर्पोरेट लोन्स या डिपॉजिट्स, बट विद इन दैट आप ले सकते हो, परसुएंट टू विच it has obtained certificate of registration from the Securities Exchange Board of India। ठीक है, सो फर्दर सच कंपनी शेल फर्निश इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द डिटेल्स ऑफ लोन क्या है, डिपॉजिट क्या है, इसकी डिटेल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता देना। सेक्शन 12 ऑफ SEBI Act 1992 requires stock broker, sub broker, share transfer agent, banker to an issue, registrar to an issue, merchant banker, underwriter, portfolio manager, etc. to get registered with SEBI and obtain a certificate of registration. There are regulations framed by SEBI which regulate such entities। ठीक है, नाउ पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन की बात करें तो सेक्शन 186 सब सेक्शन 13 कम्स इनटू पिक्चर। क्या क्या कि अगर कंपनी के ऊपर बोलें तो कंपनी को 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का फ़ाइन लग सकता है। डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर के ऊपर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 years प्लस, एंड वर्ड लिखा है, मतलब इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फ़ाइन भी लगेगा, दोनों चीज़ें लगेंगी डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर पे। क्या, 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का फ़ाइन। और फिर हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि सेक्शन 186 के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या हैं, तो वो हैं जो शेड्यूल 6 में बता रखी हैं। नाउ इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सीधा एग्जेम्पशंस में क्या दिया है कि सेक्शन 186 अप्लाई नहीं होगा, किसको अप्लाई नहीं होगा, ऐसी गवर्नमेंट कंपनी को जो किस चीज़ में इंगेज्ड है, डिफेंस प्रोडक्शन में। जो गवर्नमेंट डिफेंस प्रोडक्शन का काम करती है उसको सेक्शन 186 अप्लाई नहीं होता है, या कोई भी अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें ये कंपनी क्या कर लेती है, अप्रूवल ले लेती है। जैसे हमने सेक्शन 185 में भी पढ़ा था कि सेक्शन 185 ऐसी गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होता, बट वहाँ पर अनलिस्टेड वर्ड नहीं लिखा था, यहाँ पर अनलिस्टेड वर्ड मेंशन्ड है, मतलब नॉट लिस्टेड। ठीक है, तो अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी जो अप्रूवल ले लेती है विद द CG, ठीक है, कि वो इस तरीके की गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली है। बट
एज़ यूजुअल 137 और 92 का कंप्लायंस किया होना चाहिए इन्हीं दोनों टाइप की गवर्नमेंट कंपनीज़ को। सो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, सेक्शन 186 में दो तरीके की गवर्नमेंट कंपनीज़ को एग्जेम्पशन है, फुल एग्जेम्पशन है, फुल एग्जेम्पशन। पार्शियल एग्जेम्पशन तो एक और हमने पढ़ा था ना, सब सेक्शन 1 को छोड़कर भी कुछ ट्रांजैक्शंस में नॉन एप्लीकेबिलिटी है, पर ये एंटिटीज़ के बारे में है, इन एंटिटीज़ पर नहीं लगेगा। कौन सी एंटिटीज़ पर नहीं लगेगा? तो गवर्नमेंट कंपनी पहली जो एंगेज्ड है डिफेंस प्रोडक्शन में, दूसरी ऐसी जो अनलिस्टेड है और उसने पहले ही अप्रूवल ले लिया विद द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ दी सीजी। जो हमने सेक्शन 186 सब सेक्शन 11 पढ़ा था ना, उसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एग्जेम्पशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एग्जेम्पशन है और यहाँ पर फुल्ली एग्जेम्पशन है टू द एंटिटीज़। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। प्लस सेक्शन 186 सब सेक्शन 11 में ये भी है कि एंटिटीज़ पर भी है, ऐसा नहीं कह सकते, सॉरी ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, उसमें बोला हुआ है कि कंपनीज एंटिटीज़ भी बताए हुए हैं, तो सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट। सेक्शन 96 में फुल्ली एग्जेम्प्ट दो हैं, गवर्नमेंट कंपनी एंगेज्ड इन डिफेंस प्रोडक्शन और गवर्नमेंट कंपनी अदर दैन लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सब सेक्शन 1 तो अप्लाई होगा, बाकी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, तो वो सेक्शन 186 सब सेक्शन 11 में मेंशन्ड है कि ये वाली पर्टिकुलर एंटिटीज़ पर सब सेक्शन 1 तो अप्लाई होगा, बट बाकी के सब सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंस कि किस में क्या डिफरेंस है, किसको कितनी एग्जेम्पशन है, कितनी एग्जेम्पशन नहीं है। तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा सेक्शन 185 एंड सेक्शन 186। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। एंड आपको और भी कोई ऐसी वीडियोस देखनी है जो इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, या और भी चैप्टर से जो रिलेटेड मैंने अपलोड कर रखी हैं, या और सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने अपलोड कर रखी है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। प्लस आप में फॉर मोर प्लेलिस्ट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर जेन्युइनली आपको पसंद आया और आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा है और आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके जब भी मैं नया अपलोड करूँ कोई भी वीडियो। एंड अगर आपको लगा कि ये और भी किसी को हेल्प कर सकता है तो आप प्लीज़ इसको उनके साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी और टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको लगता है कि मुझे वीडियोज़ बनाने चाहिए, आपको कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ उन टॉपिक्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड ना ही सिर्फ और सिर्फ लॉ में, बट अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में, टॉपिक में, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। एंड आई विल ट्राई टू कम अप विद दैट वीडियो सून। सो फॉर टुडे this is all, and see you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy, bye bye.